નમસ્કાર દર્શક મિત્ર ચેનલના વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપ તમામ દર્શક મિત્રોનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આ બધા જાણો છો કે મિત્ર વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપણે કંઈક વિશેષ ચર્ચા હંમેશા કરતા હોઈએ છીએ અને વ્યક્તિ પણ કંઈક વિશેષ હોય છે। આજે પણ એક વિશેષ ચર્ચા આપણે કરવી છે અને એ ચર્ચા છે પ્રસૂતા સ્ત્રીની વેદના કમ કરવાની વાત, એટલે કે વેદના ઓછી કરવાની વાત। આપણે બધા જાણીએ છીએ મિત્રો કે લગભગ ડિલિવરી જ્યારે કરવાની વાત હોય પ્રસૂતાની, ત્યારે પરિવાર એવું ઈચ્છતો હોય કે નોર્મલ ડિલિવરી થાય। નોર્મલ ડિલિવરી કરવા પાછળના ઇન્ટેન્સ બે હોય। એક તો જે સ્ત્રી છે એની શારીરિક ક્ષમતા એ નિર્બળ ન થાય એના માટે, અને બીજું આર્થિક બોજ પણ ન લાગે એના માટે જ એવા પ્રયાસ થતા હોય કે એની નોર્મલ ડિલિવરી થાય। પણ નોર્મલ ડિલિવરી કરવા માટે પ્રસૂતાએ પોતાની પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન શું કાળજી રાખવી જોઈએ એ ખૂબ મહત્ત્વની વાત છે। અને જ્યારે પ્રેગ્નન્સી પૂરી થાય અને જ્યારે ડિલિવરી કરવાનો ટાઈમ આવે ત્યારે નોર્મલ ડિલિવરી થાય એવો પ્રયાસ બધા દ્વારા થતો હોય છે। અને હવે નોર્મલ ડિલિવરી માટેનો એક નવો પ્રયાસ, એની વોટર બર્થ, આ નામ કદાચ આપણે પહેલી વાર સાંભળીએ, પણ વોટર બર્થ ફોરેનમાં એટલે કે ભારત બહાર આ પ્રોસેસથી ડિલિવરી કરાવવામાં આવતી હતી, પણ હવે ભારતમાં, ગુજરાતમાં અને ખાસ સુરતમાં વાત કરીએ તો સુરતમાં પણ આ પ્રથા અવેલેબલ છે। અને એમની સાથે આ વિશે, વોટર બર્થ વિશે, એટલે કે પાણીમાં બાળકનો જન્મ, આ વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણે સ્ટુડિયોમાં આમંત્રણ આપ્યું છે ડિમ્પલ છતવાણીને। મેડમ, સ્વાગત છે અમારા તમામ દર્શક મિત્રો વતીથી, મિત્ર ચેનલ વતીથી। नमस्ते जी, मैं डॉक्टर डिम्पल छतवानी। यहाँ पे हम गुजरात में सिर्फ हम ही हैं जो जिसके यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है। મિત્રો, ડિમ્પલ છતવાણી મેડમ સર્ટિફાઈડ વોટર બર્થ પ્રોવાઈડર છે। ગુજરાતમાં પહેલું કદાચ વોટર બર્થ ડિલિવરી એમણે કરાવી છે અને એની શું આખી પ્રોસેસ છે એ આપણે એમની પાસેથી જાણવું છે। સાથે સાથે એ પણ જાણવું છે કે શું વોટર બર્થ એ નોર્મલ ડિલિવરી છે, લોકો ઈચ્છે એ પ્રમાણે શું આ ડિલિવરી કરી શકાય? તો આ બધી જ ચર્ચા આપણે એમની સાથે કરવી છે અને જીવંત કાર્યક્રમ છે મિત્રો, તમે પણ અમારી સાથે રહી શકો છો। સ્ક્રીન પર જે આ બે ફોન નંબર નિહાળી રહ્યા છો, 253-2223 અને 98-256-00-403, આ બે ફોન નંબર પર ફોન કરીને આપ પણ અમારી સાથે આ જીવંત કાર્યક્રમમાં રહી શકો છો। વોટર બર્થ વિશેની જે પણ માહિતી તમને જોઈતી હોય એ મેડમ પાસેથી મેળવી શકો છો। મિત્રો, એમનો ચેરીસ ફર્ટિલિટી સેન્ટર સિટીલાઇટ રોડ પર છે ને તમારું? અલથાણ ચેરીસ ફર્ટિલિટી સેન્ટર એમનું ત્યાં આવેલું છે અને પોતે ફૂલ ટાઈમ ત્યાં આગળ સર્ટિફાઈડ વોટર બર્થ પ્રોવાઈડર તરીકે મેડમ કામ કરી રહ્યા છે। તો મેડમ, સૌથી પહેલે મિત્રો એમની સાથે હિન્દીમાં વાત એટલા માટે કરવી પડશે કારણ કે ગુજરાતી સમજી શકે છે પણ કદાચ પ્રોપર બોલી નથી શકતા અને વધારે એક્સપ્લેન ન કરી શકે, એટલા માટે હું પણ કદાચ તમારા સવાલ ગુજરાતીમાં બોલીશ અને આશા રાખીએ કે મેડમ હિન્દીમાં પણ વ્યवस्थित जवाब ऑप्शन આપણે समझी सकीશું। मैडम, सबसे पहला सवाल, जब प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी की बात आती है तो यही सब लोग सोचते हैं, हर लेडी की यही उम्मीद रहती है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आज गायनेक भी आप हैं, तो एज अ गायनेक नॉर्मल डिलीवरी के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए फर्स्ट डे, मतलब प्रेगनेंसी के पहले दिन से लेके जब तक उनकी डिलीवरी 9 महीने के बाद हो तब तक? सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर एक माँ अपने अंदर एक बच्चा पाल सकती है 9 महीने तक, तो वो उसे नॉर्मल डिलीवर भी कर ही सकती है, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि कोई और प्रॉब्लम ना आए। तो जब तक सब कुछ नॉर्मल है तो नॉर्मल ही होगी। अगर एंड मोमेंट पे कुछ प्रॉब्लम आती है तभी हम ये मानते हैं कि ठीक है, इस केस में हमें कोई दूसरा तरीका यानी कि सिजेरियन सेक्शन या कुछ और करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी बॉडी रखें। हेल्दी बॉडी के लिए हमारा खान पान, हमारा हलन चलन, फिज़िकल एक्टिविटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी फिज़िकली एक्टिव रहें। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कुदरती प्रक्रिया है। तो इसमें आप भी अपना कुदरती रूटीन जो है वही फॉलो करें तो मोस्ट लाइकली नॉर्मल ही होगी, जब तक कि कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर अभी तक सब कुछ आपका शरीर नॉर्मल है तो मोस्ट लाइकली आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। मैडम, ऐसा कुछ खान पान में ख्याल रखने का हो, जैसे कि खाना कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसी है जो खाने से डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम आता हो, या मतलब खान पान में कुछ ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? जो अपना रूटीन खाना है, नॉर्मल डाइट है, हेल्दी डाइट है, जो हम रूटीनली लेते आए हैं वही लेना है। कुछ भी अलग से प्रेगनेंसी में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मली रूटीनली एक हेल्दी डाइट फॉलो करते आए हैं, अगर आपको पहले से अनीमिया नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रेगनेंसी में भी आपको वो रूटीन डाइट ही लेनी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक बच्चा आपके अंदर है तो आपको डबल खाना है।
जो नॉर्मल खाना है वही काफ़ी है। एक्सरसाइज में मैडम कुछ समझ लो, जब 3-4 महीने या 5 महीने के बाद का जो समय रहता है उसमें कुछ लोग एक्सरसाइज भी उसको सजेस्ट करते हैं। एक्सरसाइज एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रेगनेंसी की फिटनेस में। शुरू से हमें एक्सरसाइज जो रूटीन प्रेगनेंसी में अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताकर जो एक्सरसाइजेस सेफ है प्रेगनेंसी में वो करनी चाहिए। अभी सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेनर्स सब कुछ अवेलेबल है, उनका भी गाइडेंस आप ले सकते हैं। तो जो नॉर्मल पेल्विक एक्सरसाइजेस, फ्लोर एक्सरसाइजेस जो प्रेगनेंसी में हम रेकमेंड करते हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। वो बच्चे के लिए भी हेल्दी रहती हैं और उससे मदर भी हेल्दी रहती है। जो बैक एक की तकलीफ़, कमर दर्द की तकलीफ़, दोनों पैरों में पैर दर्द की तकलीफ़ रहती है प्रेगनेंसी में, अगर आप वो रूटीनली नॉर्मली शुरुआत से वो एक्सरसाइजेस करते आएंगे तो बाद में भी ये तकलीफ़ें नहीं आएंगी। जी, बहुत अच्छी बात है मैडम। अभी आप जब इतनी इजीली समझा रही है तो मैडम, अब जो चीज़ जिसके लिए हम आज का स्पेशल प्रोग्राम हमने रखा है, वाटर बर्थ डिलीवरी, तो ये शब्द वैसे सुनने में भी थोड़ा अजुगता लगेगा कि जब तक उन्होंने अपना एक्सपीरियंस नहीं है तब तक, क्योंकि फॉरेन में ये अवेलेबल है मगर अभी इंडिया में शुरुआत हुई है। तो वाटर बर्थ डिलीवरी यानी कि पानी में बच्चे का जन्म होना, ये पहली ये बात ही हमारे लिए जैसे न मानने की है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, वाटर बर्थ डिलीवरी मतलब क्या होता है वाटर बर्थ डिलीवरी और कैसे किया जाता है? देखिए, वाटर बर्थ एक नॉर्मल डिलीवरी ही है। वाटर यानी कि पानी सिर्फ एक ज़रिया है हमारी तकलीफ़ कम करने के लिए है, बाकी ये एक तरह की नॉर्मल डिलीवरी ही है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में यानी कि इंडिया में ये कई साल पहले दाई माँ वगैरह अपने घरों में ही नॉर्मल डिलीवरी कराती थी, और ताकि जो लेडी डिलीवर कर रही है उसे तकलीफ़ कम हो इसके लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करती थी। पर अनफॉर्चुनेटली वो प्रथा कैरी नहीं हुई। बाद में वेस्टर्न लोगों ने इसे अपनाया और अब हम ये कह रहे हैं कि वेस्ट से अब ये इंडिया में आ रही है, जबकि देखा जाए तो शुरुआत इसकी इंडिया में ही हुई थी। इंडिया में ही ये ट्रेडिशन था कि दाई माँ गर्म पानी में जन्म करवाती थी। पानी सिर्फ एक ज़रिया है, वाटर बर्थ एक नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी ही है। मैडम, जैसे आपने अभी बताया कि वो हमारी ही एक प्रोसेस थी और फिर वेस्टर्न लोगों ने उसका इस्तेमाल किया और अब वेस्टर्न से फिर हमारे हर चीज़ में ऐसा ही होता है। आज तक हम देखते आए हैं कि हम हमारे पुराने वेद या शास्त्र की बात करें तो हमारे वेद और शास्त्र में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो वही बात आज हम छोड़ रहे हैं। और वेस्टर्न मतलब जो पश्चिमी देश है उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उसको थोड़ा मॉडिफाई करके फिर हमें दे दिया कि ये हमने किया है। दरअसल पूरी बात हमारी ही है कि हमें ही अलग अलग तरीके से पिरसा जा रहा है और हम खा रहे हैं, और इसमें भी ऐसी ही बात है। वेस्टर्न कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र, हमारी पुरानी प्रथाएं जो हैं सब जगह सही ही हैं, हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाए और अब हम ये कहते हैं कि वेस्टर्न लोगों ने हमें सिखाया है। बस दरअसल बात ये हमारी ही है, पूरी संस्कृति। बिल्कुल, हाँ, जैसे आपने बताया दाई माँ जैसे करती है। मैडम, जब वाटर बर्थ डिलीवरी नाम ही उसका इंग्लिश में वाटर बर्थ डिलीवरी रखा है तो ये समझेंगे कि भाई ये वेस्टर्न से आया है। जैसे हम गुजराती में उसको बोल देंगे भाई पानी में बच्चे की डिलीवरी करानी है, तो ये इसको क्या नॉर्मल डिलीवरी समझा? आपने पहले बता तो दिया, फिर भी मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि सभी लोगों को ऐसा ही होगा कि भाई पानी में अगर कुछ प्रोसेस हो रही है तो वो कैसे होती है, तो उसको क्या नॉर्मल डिलीवरी समझा जाए ये वाटर बर्थ डिलीवरी को? बिल्कुल, ये नॉर्मल डिलीवरी है। पानी हमें कुछ गिफ्ट्स देता है, जैसे गिफ्ट ऑफ मोबिलिटी, यानी कि जब भी आप स्विमिंग पूल में होंगे या पानी में होंगे आप ज़्यादा मोबाइल होंगे, ज़्यादा हिल चल सकेंगे, क्योंकि आपको अपना खुद का वज़न भी महसूस नहीं होता है। अगर आप एक लेडी जो डिलीवर कर रही है उसको बोलेंगे वो स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठी रहे नॉर्मल बिना पानी के, तो कितनी देर बैठ पाएंगे? थोड़ी देर में थक जाएंगे। यही चीज़ पानी में करना इजी होता है। आप अगर मोबाइल ज़्यादा होंगे तो बच्चा भी उतना जल्दी नीचे आएगा, उतना ज़्यादा मूव करेगा, तो जो नॉर्मल डिलीवरी का ड्यूरेशन जितना टाइम लगता है वो कम हो जाएगा क्योंकि बच्चा ज़्यादा मूव करेगा। दूसरी चीज़, उसमें पेन कम होगा। जब भी हमें रिलैक्स होना होता है या हमें थोड़ा आराम की ज़रूरत होती है, रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, तो कई बार हमें गर्म पानी का हम सेक करते हैं, एक गर्म पानी में जाके शावर ले लेते हैं या गर्म पानी के टब में रिलैक्स हो जाते हैं। तो बस उसी तरह जब एक औरत को डिलीवरी के समय पे दुखता है, दर्द होता है, हम उसे गर्म पानी के ज़रिए रिलैक्स करते हैं। इसके दो तरीके हैं, दो तरह से ये फ़ायदे
फ़ायदेमंद होता है। एक तो जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दोनों तरह के सेंसेशंस जाते हैं, यानी कि पेन वाला सेंसेशन और रिलैक्सेशन वाला सेंसेशन, तो जो रिलैक्सेशन का फीलिंग है, जो सेंसेशन है, वो हमेशा पेनफुल सेंसेशन के ऊपर जीतता है। तो इसीलिए अगर पेन होता भी है, कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, यानी कि यूट्रस गर्भाशय जोर लगाता है, लेकिन शरीर को वो महसूस कम होता है क्योंकि वो औरत पानी में रिलैक्स्ड है। दूसरा कैसे ये फ़ायदा करता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होने चाहिए, ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे के सारे हार्मोन जब पानी में कोई औरत है तो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ होते हैं। तो वो जो ड्यूरेशन है, जो कॉन्ट्रैक्शंस आने चाहिए डिलीवरी के टाइम पे, वो ज़्यादा अच्छे से आते हैं और महसूस भी कम होते हैं। तो जो प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी का लेबर ड्यूरेशन पहली बार अगर डिलीवरी कर रहे हैं तो 6 to 8 आवर्स हम मान के चलते हैं, उससे थोड़ा कम हो जाता है पानी में, यानी कि फास्ट डिलीवरी भी हो सकती है और उसका सेंसेशन, पेनफुल सेंसेशन भी कम आता है। अगर आप रिलैक्स्ड होंगे तो वो और ज़्यादा इंटरनली हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होंगे। तो जो बाहर के पेन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं पेन लाने के लिए, उसकी ज़रूरत या तो नहीं पड़ती है, या अगर होती भी है तो बहुत ही कम केसेस में, बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करना पड़ता है। तो ये कम्प्लीटली नेचुरल डिलीवरी है, 100% नेचुरल, जिसमें बाहर का कोई हार्मोन नहीं दिया जाता। मदर जैसे उसका लेबर प्रोग्रेस हो रहा है उसे प्रोग्रेस होने दिया जाता है। और कई बार ऐसे भी मुझसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कब पानी में जाने के लिए बोलोगे। जब भी मदर को पेन होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो एक्टिव लेबर में हो, यानी कि उसको लेबर ही हो, वो घर पे भी है, उसे तो भी अगर दर्द हो रहा है हम उसे बोलेंगे तुम गर्म पानी का शावर ले लो। या फिर वो डिलीवरी के लिए आई, ऐसा नहीं है कि लेबर पूरी तरह चालू हो चुका है उसके बाद हम बोले उसको पेन हो रहा है, उसे कहेंगे कि ठीक है तुम 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, आधा घंटा पानी में जाके बैठ सकते हो और फिर बाहर आ सकते हो अगर तुम्हें रिलैक्स्ड फील होता है या तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत होती है। और ऐसे केसेस में हमने कई बार देखा है कि वो पानी में जाने के बाद जो 2 सेंटीमीटर का मुंह खुला होता है वो थोड़ी ही देर में 5-6 सेंटीमीटर अपने आप हो जाता है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइन नहीं है कि इतना पेन हो हमें तो ही पानी में जाने देना है। इट इज़ एज पर द डिमांड, जैसे मदर को पेन होगा हम उसे तभी जाने बोलेंगे। अच्छा, तो मैं वही सवाल मैडम आपसे पूछना चाहता था कि जो लेडी प्रसूता, जो लेडी है, उसको क्या क्या ख्याल रखना चाहिए अगर वो अपने बेबी को इस वाटर बर्थ में डिलीवरी करवाना चाहता है, तो उसे क्या क्या ख्याल रखने चाहिए? कुछ इसके लिए स्पेशल इंडिकेशन नहीं है। इनफैक्ट ये कंसेप्ट ये है कि अगर एक माँ अपने अंदर 9 महीने तक बच्चा रख सकती है तो वो उसको बहुत अच्छी तरह डिलीवर भी कर सकती है। कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं। हम जब वाटर बर्थ कराते हैं, हमारे टीचर्स जिसने हमें सिखाया है वो कहते हैं तुम्हारा काम, गायनेकोलॉजिस्ट का काम सिर्फ ये है कि उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि कुछ गड़बड़ ना हो। उसे मदर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं। उसे बीच में खड़े होना है, वो खड़े हो सकती है, बैक उल्टा लेटना है वैसे बैठ सकती है, क्योंकि माँ अपने आप जानती है उसे किस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, वो उसके हिसाब से अपनी पोजीशन अपने आप चेंज करेगी। दिस इज जस्ट अ वॉचफुल ऑब्जर्वेशन, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। जब बच्चा आ भी जाएगा उसके बाद भी न तो हमें नीचे कोई कट देना है जिसको हम एपिजियोटॉमी बोलते हैं, जितनी बच्चे को ज़रूरत होगी उतना कुदरती टेयर अपने आप होगा। और हो सकता है अगर दूसरी तीसरी बार डिलीवरी हो तो वो टेयर ना भी हो, क्योंकि हम बाहर से कोई हार्मोन नहीं देते हैं इन मोस्ट केसेस। तो जो बॉडी के जितने कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उतने ही होते हैं। कोई जब हम बाहर से देते हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस थोड़े बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्सटर्नल हार्मोन, कोई बाहर के हार्मोन का यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो वो टेयर जो नीचे कटता है उसकी भी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, माइनर टेयर होता है। દર્શક મિત્રો, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ મિત્ર વિશેષ કાર્યક્રમમાં, અને વોટર બર્થ ડિલિવરી એટલે કે પાણીમાં બાળકનો જન્મ કેવી રીતે કરી શકાય એ પ્રોસેસની પૂરેપૂરી જાણકારી આપણે ડિમ્પલ છતવાણી મેડમ પાસેથી મેળવી રહ્યા છીએ. મિત્રો, આ જીવંત કાર્યક્રમ છે. આ કાર્યક્રમમાં તમે પણ અમારી સાથે રહી શકો છો, અને આ જે ટોપિક છે વોટર બર્थ डिलीवरी, એને લગતો કોઈ સવાલ પૂછવો હોય તો પૂછી શકો છો. मैडम, हम जो बात अभी कर रहे थे उसमें कुछ वीडियोस आपने जो हमें दिए हैं और उन्होंने हमें परमिशन भी दी है उसको डिस्प्ले करने की, तो मैं हितेश भाई से बात करता हूँ. इससे पहले आप थोड़ा सा इस पूरी जो प्रोसेस है उसके बारे में फिर भी थोड़ा
इंस्ट्रक्शन दे दो तो आई थिंक जिनको भी जानकारी चाहिए वो इजीली में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछते हैं, क्या ये बच्चे के लिए सेफ है? आपने कभी अगर देखा हो, चाहे ह्यूमन डिलीवरी नहीं, कभी जानवरों की, गाय की डिलीवरी या किसी की भी डिलीवरी में, कि बच्चा एनसैक, बाहर जो उसका सैक होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो पानी में ही रहता है, तो उसके सैक के साथ में डिलीवरी होती है, तो वो सेफ होता है ना? बच्चा माँ के पेट से जब निकलता है तो सैक के अंदर निकलता है। बस वाटर बर्थ एक एक्सटेंडेड सैक है, वो सैक समझ लीजिए बड़ा हो गया। जब बच्चा 9 महीने माँ के पेट में पानी में ही रह रहा है और उसी तरह के टेम्परेचर में, हम वाटर बर्थ का में जो पानी यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर 39 डिग्री, 38 to 39 डिग्री, यानी कि माँ के बॉडी टेम्परेचर से 1-1.5 डिग्री ऊपर तक ही रखते हैं। तो जब बच्चा उसी तरह के टेम्परेचर में, उसी तरह के माहौल में निकलता है तो बच्चे के लिए ट्रांजिशन, यानी कि पानी में ही आना बिकम्स ईजी रहता है उसके लिए। दूसरा, बच्चे के लिए इनफैक्ट ये बेहतर है, क्योंकि जब हम डिलीवरी के बाद में कॉर्ड कट करके बच्चे को अलग करते हैं, इसमें वो नहीं किया जाता। बच्चे को तुरंत डिलीवरी के बाद माँ की छाती पे रख दिया जाता है। इससे और माँ के अंदर और भी ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे जो वार होता है, प्लेसेंटा, जिससे बच्चा माँ से अटैच्ड होता है, वो भी इजीली निकलता है विदाउट एनी एक्सटर्नल मेडिकेशन। दूसरी चीज़, जब बच्चे को माँ के छाती पे रखा जाता है तो कॉर्ड, जो नाल होती है, वो कट नहीं की जाती, उसको पूरी तरह जब तक प्लेसेंटा नहीं निकलता है उसको इंटैक्ट रहने दिया जाता है। और जब प्लेसेंटा निकल जाता है, पूरा का पूरा प्लेसेंटल ब्लड, प्लेसेंटा में करीब 40% ब्लड होता है, वो पूरा का पूरा ब्लड जब बच्चे के पास पहुंच जाता है उसके बाद ही कट किया जाता है। तो बच्चे को एक एक्स्ट्रा ब्लड भी मिलता है, बच्चा तुरंत माँ के शरीर से अटैच होता है, एक बॉन्डिंग होती है, माँ के अंदर भी और ज़्यादा हार्मोन्स यानी कि ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे प्लेसेंटा को हाथ से मैनुअल रिमूवल कहा जाता है, वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और प्लेसेंटा अपने आप निकलता है। तो वो मैडम, वो बच्चे के शरीर में जाता है या बच्चे के शरीर में जाता है वो जो ब्लड जब हम कट करते हैं तो 40% ब्लड वेस्ट हो जाता है। और अगर हम कॉर्ड कट नहीं करते पूरी तरह, जब तक कि कॉर्ड धड़कना बंद हो जाए तब तक वो ब्लड जाने देते हैं, तो वो सारा का सारा एक्स्ट्रा ब्लड बच्चे के शरीर में जाता है। तो इसके कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चे की जो इसकी स्ट्रेंथ है वो भी और भी बढ़ती है, अनीमिया वगैरह, जो भी उसको एक एक्स्ट्रा खून मिल रहा है, 40% एक्स्ट्रा खून मिल रहा है, तो दैट इज ऑब्वियसली वो बच्चे के लिए फायदेमंद है। ओके, तो मैं हितेश भाई से, अपने टेक्नीशियन हितेश भाई से बात करूँगा कि जो वीडियोस आपने उन्होंने दिए वो वीडियोस प्ले करें। हितेश भाई, मैडम इसके साथ आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ये भी फर्स्ट टाइम मदर ही थी और इसमें कॉर्ड अराउंड द नेक था, जैसा कि आपने देखा होगा, बच्चे के गले के आसपास एक नाल थी, जिसके जो कई बार हमने सुना है कि उस केस में सिजेरियन करना पड़ता है। ऐसे केसेस में भी ये नॉर्मल डिलीवरी, वाटर बर्थ डिलीवरी में पॉसिबल होती है। एंड ये सूरत की सबसे पहली, ये सूरत की पहली डिलीवरी थी एंड ये आई थिंक 4th थी ये वाली डिलीवरी। इसमें 3 लूप्स ऑफ कॉर्ड थे, नाल 3 बार बच्चे के आसपास लपेटी हुई थी और हमें ये पता था। ये भी फर्स्ट टाइम मदर ही थी और बहुत ही इजीली स्मूथली इनकी डिलीवरी हुई, 3 लूप्स ऑफ कॉर्ड के साथ भी। अच्छा, अगर जैसे वैसे हॉस्पिटल में होते तो देखेंगे तो इसमें ये 3 लूप्स हैं। आप जो अभी कट नहीं किया है, इसके बाद में ही कट? हाँ, बाद में कट करते हैं। अगर हॉस्पिटल में ये लेडी अगर हॉस्पिटल में होती तो उसको कंपल्सरी सिजेरियन ही करते? अब ऐसा तो नहीं बोल सकते क्या होता, पर हमने पूरी तरह कोशिश की, नॉर्मल की और पानी में हो भी गई। मेरा मैडम सवाल ऐसे ये मैं पूछना चाहता था कि बच्चा जब पानी में आता है तो उसको कोई दिक्कत होती है कि नहीं? मगर आपने पूरा बता दिया कि वो वैसे ही माँ के जब पेट में होता है तो वो पानी में ही होता है और वही टेम्परेचर भी वही मेंटेन रहता है। तो जब तक बच्चा पहली सांस नहीं लेगा तब तक वो पानी उसके नाक में, फेफड़ों में जो एस्पिड, तब तक नहीं जाएगा। तो बच्चा जब तक पानी के अंदर है और कॉर्ड इंटैक्ट है, बच्चा सांस नहीं लेगा।
तो बच्चा पूरी तरह बाहर आएगा, हम उसे पानी में हवा में लेकर आएंगे, उसके बाद ही फर्स्ट ब्रेथ लेगा, तब तक बच्चा ऑलरेडी पानी के बाहर होगा। तो जब बच्चा 9 महीने तक माँ के पेट के अंदर है तो वो पानी में भी रहेगा, इट इज जस्ट उसके बाद 10-12 सेकंड मतलब की बात कोई है। दिक्कत नहीं है, अगर बच्चा पानी में आ गया है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप वो आपने बोला ना कॉट नहीं करेंगे तब तक। ओके, दूसरा भाई ये मैडम कहना चाहता है कि नॉर्मल डिलीवरी समझ लो, ये अपना वाटर बर्थ डिलीवरी करवाने के बाद लेडी को कुछ प्रॉब्लम होती है या अगर उसे कुछ ख्याल रखना पड़ता है? हमें बल्कि ऐसा कहा जाता है, आपने ये एक स्टडी हुई थी जिसमें पूछा गया, हमारे इंडिया में तो इतनी नॉर्मल डिलीवरीज नहीं हुई थी, पर अमेरिका में ये एक स्टडी की गई थी जिसमें 10,000 मदर्स से पूछा गया कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या फीलिंग रही। तो उनका आंसर था वी फेल्ट रिजुविनेटेड। लाइक आप जब स्पा करवाने जाते हैं तो आपको फ्रेश फील होता है, आप टायर्ड होके नहीं आते हैं स्पा से। तो ये एक तरह का आप समझ लीजिए स्पा ही है। आप जब पानी के बाहर आएंगे तो वो थकावट नहीं होगी, यू फील फ्रेश एंड रिजुविनेटेड आफ्टर वाटर बर्थ। अब हमारे जब इंडिया में भी हो जाएंगे इतने केसेस तो हम यहाँ पे भी एक सर्वे करेंगे कि सारे मदर्स का एक्सपीरियंस कैसा है। अभी तक मैडम जिन्होंने भी करवाया है, मतलब वाटर बर्थ डिलीवरी जिन्होंने करवाई है, क्या कहता है आपसे? उनके वीडियोस हैं, सबके वीडियोस हैं, रिटर्न में भी है हमारे पास की, और फॉर्चुनेटली अभी तक सबका ही रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव रहा है। कितने आज तक मैडम आपने ये जो चेरिश अपना ये इनफर्टिलिटी अभी सेंटर तक हमने ये 7 अगस्त को हमने स्टार्ट किया था और अभी तक हमारे 7 वाटर बर्थ हुए हैं। 7 और सबका रिस्पांस यही आपका पॉजिटिव ही है। हाँ। अच्छा, इसके बाद बच्चे को और उसकी माँ को क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है वाटर बर्थ के बाद? कुछ स्पेशल ख्याल नहीं रखना है, बस हम माँ को यही बोलते हैं कि तुम्हें सिर्फ अपने पास ही रखना है, बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है। वाटर बर्थ कोई स्पेशल चीज नहीं है, ये एक 100% नेचुरल प्रक्रिया है। तो इसके बाद इनफैक्ट कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कोई स्पेशल बात का ध्यान नहीं रखना है। जो नेचुरली होता है, फीडिंग कराना है, बच्चे को ध्यान रखना है, बस वही बात है। मैडम कभी कभी हमने सुना है कि किसी बच्चे की उम्र कम, मतलब 9 महीने से पहले जब उसका बर्थ होता है तब उसको किसी ऑक्सीजन में या फिर कुछ पेटी में रखना पड़ता है, ऐसे कुछ इस अपना वाटर बर्थ डिलीवरी में ऐसा कुछ सिचुएशन होता है क्या? प्रीटर्म अगर मतलब अपने डिलीवरी की डेट से पहले डिलीवरी हुई है, उन केसेस में हम वाटर बर्थ प्रेफर नहीं करते हैं, बिकॉज बच्चा मैच्योर नहीं होता है। तो उन केसेस में वाटर बर्थ प्रेफर नहीं करते। बच्चे का वजन कम होता है, मैच्योरिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जब प्री टर्म बच्चा होता है उसे तुरंत एक पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत होती है, और इसका वाटर बर्थ का कंसेप्ट ही ये है कि बच्चा माँ के पास ही रहे, बच्चे को माँ से अलग नहीं किया जाए। प्री टर्म बच्चे में इन मोस्ट केसेस, क्योंकि बच्चा मैच्योर नहीं है, तो उसे तुरंत जैसे ही डिलीवरी हुई उसे जल्दी से निकाल के पीडियाट्रिशियन को देना पड़ता है। इसीलिए उन केसेस में वाटर बर्थ प्रेफर नहीं किया जाता। ओके, तो उसी टाइम पे तो ये जो भी अभी प्रोसेस चल रही है उसी प्रोसेस से डिलीवरी करवानी चाहिए। यस, नॉर्मल कर सकते हैं, करते ही हैं, बट वाटर बर्थ नहीं करवा सकते, क्योंकि इसके पीछे का रीजन आपने जो बताया वो पीडियाट्रिक के पास ही उनको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो आपने अभी मैडम बताया कि ये आपका जो वाटर बर्थ डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसमें बच्चे को उसके माँ के पास ही रहना ज़रूरी है, तो वो क्यों ज़रूरी है? वो क्योंकि बच्चे और माँ के लिए अच्छा है। जैसे ही बच्चा आया, हम अनलेस एंड अनटिल बच्चे को कुछ ज़रूरत हो कि उसे तुरंत पीडियाट्रिशियन को देना पड़े, इससे अच्छा है बच्चे को माँ की छाती से ही लगाया जाए, तुरंत उसको ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट तभी चालू कर दी जाए जैसे ही माँ फीडिंग कराना चालू करेगी, क्योंकि फीडिंग में जो हार्मोन रिलीज होता है वो भी ऑक्सीटोसिन ही होता है। तो उसके बाद प्लेसेंटा, जो वार है बच्चे का, वो भी निकल जाएगा और बच्चे के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। हमारी बुक्स में भी यही लिखा है कि विद इन 10 मिनट्स के अंदर डिलीवरी के बाद फीडिंग इनिशिएट हो जाना चाहिए। तो ये इजीली डिलीवरी 10 मिनट्स के अंदर, हाँ स्टैंडर्ड, पर इसमें तो हम तुरंत ही रख देते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ओके, तो मैडम और एक सवाल जो हर लेडी के मन में रहता है, कब तक जब फीडिंग की बात आती है तो वो बोलते 1 साल तक, 6 महीने तक, 1.5 साल तक, कितने? 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, पानी भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं, घुट्टी नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, और 2 साल तक फीडिंग कराना रहता है। उसी से बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी बनती है। और 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव, यानी कि बाहर का कुछ भी चीज़ नहीं देनी है, न दूध, न पानी,
ना कोई घुट्टी, ना कुछ और। मतलब जो माँ का दूध है उसमें इतनी ताकत है उसमें ही सब एंटीबॉडीज होंगी, सब ताकत होगी, और बच्चा का वजन भी बढ़ेगा ही। कई माएँ सोचती हैं कि मेरा दूध कम है इसलिए बच्चा रोता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा, जो भी बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे होगा वो थोड़ा जल्दी रोएगा, क्योंकि जितनी बच्चे की एनर्जी लगती है वो दूध सक करने में, और यही अगर आप बाहर से देंगे तो वो बच्चे की एनर्जी नहीं लग रही है, तो वो एक जब बाहर का दूध पिएगा तो शायद 3-4 घंटे तक भी उसको भूख ना लगे। और जब कोई बच्चा माँ के दूध पे होगा, हो सकता है वो आधे घंटे में या 1 घंटे में फिर से डिमांड करे। तो हम हमेशा पेशेंट को बताते हैं, मदर को बताते हैं कि हमेशा दिस शुड बी ऑन डिमांड। जब बच्चा डिमांड कर रहा है तब आपको दूध पिलाना है। ये कई बार थोड़ा सा टायरिंग हो सकता है, एग्जॉस्टिंग हो सकता है, बट बच्चे के लिए यही ज़रूरी है। मैडम, हमने वीडियो में अभी देखा कि जिस मैडम की डिलीवरी हो रही थी उसके बाद में उनके हस्बैंड खड़े थे, तो क्या ये नॉर्मल डिलीवरी में पेरेंट्स, मतलब जो इसके हस्बैंड है, वो रह सकते हैं? जैसे कि ऑपरेशन में केस में नहीं रखा जाता, तो नॉर्मल डिलीवरी में यस रख सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी में रख सकते हैं। और वाटर बर्थ में तो हम इंसिस्ट करते हैं कि वाटर बर्थ का टोटल उसका पूरा प्रिंसिपल ही ये है कि जो मदर है, जो प्रसूता है, वो रिलैक्स्ड फील करे। अगर कोई अपना, ये जिसे हम बर्थिंग पार्टनर कहते हैं, मेरा हस्बैंड या मदर इन लॉ, जो भी आपका बर्थिंग पार्टनर है, कोई अपना आपके साथ होगा, अनजानों की वजह, डॉक्टर अनजाना, सिस्टर्स अनजाने हैं, तो कोई अपना होगा तो यू विल बी मोर रिलैक्स्ड। और इन कई केसेस में हम हस्बैंड को टब के अंदर भी अलाउ करते हैं ताकि वो और ज़्यादा रिलैक्स्ड रहें और इंटीमेट रहें। इंटीमेसी के टाइम पे जब आप अपने स्पाउस के साथ एक इंटीमेट रिलेशन मेंटेन करते हैं, तब भी यही हार्मोन रिलीज होता है जो डिलीवरी के टाइम पे रिलीज होता है। तो अगर इफ समबडी इज रिलैक्स्ड एंड इंटीमेट, तो उसकी डिलीवरी और भी इजी हो जाती है और बाहर के हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हस्बैंड को हम टब के अंदर भी अलाउ करते हैं। ઓકે, દર્શક મિત્રો, અત્યારે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ વોટર બર્થ ડિલિવરી વિશે, અને ચર્ચામાં આપણી સાથે તમારા સવાલના જવાબ, ઘણા દર્શક મિત્રોના મનમાં જે સવાલ ઉભા, કદાચ ચેનલના માધ્યમથી તમે સવાલ નથી પૂર્યા, પણ તમારા મનમાં જે સવાલ ઉદ્ભવતા હતા તમારા માધ્યમથી, એટલે મારા માધ્યમથી મેં બધા સવાલ એમને પૂછ્યા છે ને તમે કદાચ જવાબ પૂરેપૂરા મેળવ્યા છે। છતાં પણ અત્યારે મેડમ પાસેથી મારે છેલ્લે એમ જાણવું છે મેડમ કે વોટર બર્થ ડિલિવરી એટલે કે પાણીમાં બાળકનો જન્મ, એ વિશેની પૂરેપૂરી માહિતી આમ તો આપણે સવાલ જવાબમાં ચર્ચા કરી લે, મगर इनसे और भी अगर कुछ कहना चाहो इसके बारे में, वाटर बर्थ डिलीवरी के बारे में, और जितने भी अभी ये जो कार्यक्रम हमारे देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहो कि वाटर बर्थ डिलीवरी के लिए आपको आगे आना ही है, क्योंकि उनके लिए, बच्चे के लिए और पूरे परिवार के लिए अच्छा है, तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लेडी जो अभी प्रेग्नेंट है और वाटर बर्थ डिलीवरी के लिए आपके पास आए? वाटर बर्थ हमारी ही संस्कृति में थी। अगर आपको पता हो, हम जब इंसान एवोल्यूशन जो हुआ है, हम भी पहले फिशेस ही थे, हम पानी से ही इवॉल्व हुए हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, कभी आपने अगर सोनोग्राफी वगैरह में देखा हो तो फिश की तरह ही होता है, और ये इंडियन, भारतीय संस्कृति में ही था। वाटर बर्थ एक ज़रिया है नॉर्मल नेचुरल डिलीवरी का, पूरी तरह नेचुरल, जिसमें मिनिमल इंटरवेंशन, कोई भी बाहरी ड्रग्स, बाहरी मेडिकेशन या टेक्निक्स यूज़ नहीं किए जाते। ये एक 100% नेचुरल डिलीवरी का तरीका है। आपकी बॉडी में इतनी क्षमता है, आपको अपनी बॉडी पे भरोसा रखना है, अपने शरीर पे भरोसा रखना है, खुद पे भरोसा रखना है कि अगर आपकी बॉडी 9 महीने तक बच्चा कैरी कर सकती है, उसे पोषण दे सकती है, पाल सकती है, तो नेचुरली बिना किसी हेल्प के, बिना किसी इंटरवेंशन के वो डिलीवरी भी करा ही सकती है। इनफैक्ट इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि जब कुछ गड़बड़ हो, जब कुछ हमें अननेचुरल लगे या कुछ प्रॉब्लमेटिक लगे, तभी हमारा रोल आता है। अदरवाइज एक माँ में इतनी क्षमता होती है कि वो अपना बच्चा नेचुरल तरीके से डिलीवर कर सके। દર્શક મિત્રો, બહુ સુંદર વાત એમણે કરી કે અત્યારે જે વોટર બર્થ એટલે કે પાણીમાં બાળકના જન્મની જે પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે, એ ક્યાંક ને ક્યાંક શરૂઆત આપણા ભારતમાંથી, એટલે ભારતીય સંસ્કૃતિને રિમોડ્યુલેટ કરીને ફોરેનમાં ને ફોરેનથી પાછા આપણે અહીંયા ઇમ્પોર્ટ કરી છે, પણ છે આપણી પોતાની જ પદ્ધતિ, એટલે કે નેચરલ
ડિલિવરી કહી શકાય. એમણે કહ્યું એમ કે દાઈમાં જે રીતે ડિલિવરી કરાવતા હતા ગરમ પાણીનો શેક આપીને, એવી જ રીતે આ એક પ્રથા છે જેમાં પાણીના ટબમાં, ગરમ પાણીના ટબમાં ડિલિવરી કરાવવામાં આવે છે. તો આને નેચરલ ડિલિવરી પણ ગણી શકાય. અને બીજી વાત એમણે બહુ ખૂબ સરસ વાત કરી કે મિત્રો કોઈપણ જાતનો એક્સ્ટ્રા બીજી કોઈ પણ એને દવા કે એવું કંઈ આપવામાં નથી આવતું. માત્ર ને માત્ર સ્ત્રી જ્યારે બાળકને 9 મહિના સુધી જો એને સહન કરવાની શક્તિ છે તો એને નોર્મલ ડિલિવરી કરવાની શક્તિ પણ એનામાં હોય જ છે. પણ એને ઇન્સિસ્ટ કરીને, એને પ્રોત્સાહન આપીને વોટર બર્થ ડિલિવરી કરવામાં આવે છે. તો અપેક્ષા રાખું કે આપણને જે પણ માહિતી मैडम પાસેથી મેળવી હતી આપણે મેળવી શક્યા છીએ. અને मैडम हमारे पूरे टीम की तरफ से हमारे दर्शकों की ओर से आपका कीमती समय हमारी चैनल के लिए और हमारे दर्शकों के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ધન્યવાદ. દર્શક મિત્રો, આવા નવા જ વિષય વસ્તુ સાથે, નવા વ્યક્તિ સાથે ફરી પાછા આપણે મિત્ર વિશેષ કાર્યક્રમમાં મળીશું. ત્યાં સુધી આપના મિત્ર સીટી પ્રજાપતિ તરફથી ઓમ નમઃ શિવાય.